اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بیفور وی اسٹارٹ دا نیکسٹ آیا، آپ سب سے کہنا تھا کہ دعا کریں. ہماری بہت عزیز یہاں کی ہماری مسجد کی آیا اسی کی نائرہ جو ہیں اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے. آپ لوگوں کو اگر جن کو پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں، آیا اسی والے نائرہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، بٹ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، نائرہ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی چند سال پہلے، خالد کی. ہی واز اے ونڈرفل پرسن. اسی نے یہ ہماری مسجد میں جو قرآن کلاس ہے اس کو سٹارٹ کرایا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ اس کا اجر دے گا. جو ایک نیکی سٹارٹ کرتا ہے اس کو ہمیشہ اس کا اجر، جب تک لوگ اس قرآن کو اس انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کے خود پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے، اس سے نیکسٹ جنریشن، جب تک جنریشنز ٹو کم، انشاءاللہ ہی ول گیٹ دا ثواب فار اٹ. اینڈ نائرہ از اے ونڈرفل پرسن. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر دے، اس کو اور اس کی امی کو. ہسبینڈ کے جانے کے بعد جب باپ چلا جاتا ہے تو اٹس اے بگ 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 لاس. ویسے بھی جس کا باپ جائے اٹس ناٹ ایزی. تو آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ نائرہ کے ابا کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہائی لیولز آف پیراڈائز میں، اور اللہ تعالیٰ نائرہ کو اور اس کی امی کو اور پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. ان کے بھائی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی نا پچھلے سال. بھائی کی بھی ہوئی تھی. ہاں وہی نا، ہسبینڈ کی ہوئی، بھائی کی ہوئی، اور پھر ابا کی ہوئی. آزمائشیں، ہماری آزمائشیں تھوڑی سی آتی ہیں، ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو اس کی جگہ پہ، پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ کس کس آزمائش میں ہیں. پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ اس کو صبر دے، حوصلہ دے، اور اس کے لیے سب سے بہترین جزا دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ کو چیز لیتا ہے تو بہت دیتا بھی ہے. سارا جو بھی دے گا اس کو فیل بھی نہیں ہوگا. اللہ میں ول ریپلیس وتھ ایوری تھنگ ایز از ہر لائف از. اللہ دیتا ہے، لے لیتا ہے تو دیتا بھی بہت ہے. ضرور ضرور. تو چلیں بس آپ سب دعا کریں. بس مجھے یہ تھا کہ آپ لوگ دعا کر لیں، میں بھول نہ جاؤں اینڈ میں. تو سب لوگ پلیز دعا کریں نائرہ کے لیے بھی، نائرہ کی فیملی کے لیے بھی، اور نائرہ کی امی کے لیے بھی، اور ان کے ابا کی مغفرت کے لیے. آتے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم الحمدللہ آیا نمبر 50 ختم کیا تھا آف سورہ البقرہ. آج آیا نمبر 51 پہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ and when، اردو میں اور جب. وعدنا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو عین دال، جیسے ہم کہتے ہیں وعدہ، ٹھیک ہے نا، پرومس. تو اس کا فارم کیا ہے؟ فارم 3 ہے. وعدہ یوعد مواعدۃ، وعد یوعد موعدۃ، ٹھیک ہے، فارم 3. اس کا مطلب یہ کہ ایک تو ہے پرومس، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وعدنا یعنی وی پرومسڈ، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے وی کالڈ یا وی اپوائنٹڈ، وی گیو دا ورڈ. پرومس کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنا ورڈ دیتے ہیں، اٹس لائک اے پرومس. ہم سمجھتے ہیں نا ہم نے تو قسم نہیں کھائی، ہم نے تو وعدہ نہیں کیا، بٹ وین ایور وی گیو آور ورڈ اٹ از اے پرومس، ٹھیک ہے نا. تو وی اپوائنٹڈ، وی کالڈ، وی پرومسڈ، اور وی گیو دا ورڈ، یعنی ہم نے وعدہ کیا یا ہم نے مقرر کیا. ہم نے بات کہی، ہم نے مقرر کی. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے وعدہ کیا کس سے؟ موسیٰ، ٹو موسیٰ یا ود موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے ایک چیز کی، ہم نے وعدہ نے، ہم نے اپوائنٹ کیا ان کے لیے 40. 40 ہے، روٹ لیٹرز ہیں را با عین. جیسے ہم نے قرآن پڑھے تھے، ہم کہتے ہیں ربع آ رہا ہے، ربع، تو وہ بھی 1/4 ہوتا ہے، تو اس کو ربع کہتے ہیں. تو 40 is 40، 4 is 40 is 4، 4 is 4 and 40 یا 40 is 40. 40 کیا ہوگا؟ اگر اس کا فارم ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ہوگا، اور اگر وہ منصوب ہے یا مجرور ہے تو 40 کو 40 کہیں گے. میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب میں نے شروع میں عربی سیکھنی شروع کی تھی تو میں نے اپنے جو استاد تھے ان کو جا کے پوچھا، میں نے کہا ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کہیں 40 ہوتا ہے، کہیں 40 ہوتا ہے. I didn't know اس وقت کہ منصوب کیا ہوتا ہے اور مجرور کیا
क्या होता है। मैंने कहा हम अरबऊन भी पढ़ते हैं, अरबईन भी पढ़ते हैं। हंस के बोले मुझे यू विल लर्न दिस। तो इंशाल्लाह जिनको नहीं आता है दे विल लर्न। लैलतन, लैला आपको सबको पता है, हमें लैलतुल कदर पता है। लैल मीन्स नाइट, इसके रूट लेटर्स हैं लाम या लाम। लैल जिस तरह हम लिखते हैं, उर्दू में भी हम लिखते हैं, इंग्लिश और अरबिक में भी, इसका मतलब है नाइट्स यानी रातें। तो रातें 40 नाइट्स और 40 रातें आप इसको लिखें। उर्दू में मैं 40 बोलना भूल गई, तो 40 40 और लैलतन यानी नाइट्स यानी रातें। सुम्मा, सुम्मा मतलब देन उर्दू में फिर। इत्तखज़तुमुल इजला, इत्तखज़तुमुल अभी इजला में नहीं पढ़ूंगी। इत्तखज़तुम यानी अ जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरह का है, हमजा ख जाल, लेकिन इसका फॉर्म डिफरेंट है। इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाजुन, इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तिखाजुन यानी आपने पकड़ लिया, आपने बना लिया, तुमने बना लिया। इंग्लिश में होगा यू मेड इट, यू मेड या यू टुक, यू मेड या यू टुक। अब आगे आप देंगे उसका जो ऑब्जेक्ट आ रहा है किस चीज को बना लिया, अल इजला, अल इजला। अल इजला में इसके रूट लेटर्स हैं आइन जीम लाम। इसका मतलब है द कैफ, कैफ मतलब जो बछड़ा, गाय का जो बच्चा होता है वो, ठीक है ना, कैफ, और उर्दू में कहते हैं बछड़ा। तो इसका अगर हम सिंगल अल इजला, अगर हम इनडेफिनेट लेंगे तो सिर्फ इजलुन आएगा, ठीक है ना, इजलुन। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने बना लिया, यू टुक द कैफ या यू मेड द कैफ। एक स्पेशल कैफ था इसीलिए ये डेफिनेट है, इंडेफिनेट नहीं है। अल इजला दैट पर्टिकुलर काफ आपने बना लिया। मिम बादिही, मिम बादिही आप सबको आता है, बा इन दाल, बाद के रूट लेटर्स हैं, और मिम बादिही आफ्टर हिम, आफ्टर होम, आफ्टर मूसा अलैहि सलाम। हमने क्या पढ़ा कि जब मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने बुलाया, अपॉइंटेड फॉर 40 नाइट्स, उसके बाद, मिम बादिही उर्दू में लिखें उसके बाद, आफ्टर हिम, किसके बाद, मूसा अलैहि सलाम के बाद। व अंतुम एंड यू, एंड तुम सब, और तुम सब, ज़ालिमून आप लोग जुल्म करने वाले थे, यानी यू वर रॉन्ग डूअर्स। आपको पता है ज़ोए लाम मीम या ज़ो लाम मीम इसके रूट लेटर्स हैं। अब इस किस्से के बारे में थोड़ा सा आगे इसको अब ग्रामर देख लेते हैं पहले। व इज वाउल अत्फ, एंड इज आपको पता है ज़र्फ़े ज़मान यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। दो किस्म के एडवर्ब्स हम नॉर्मली पढ़ते हैं, ऑफ टाइम एंड लोकेशन। यहाँ टाइम का है कि व्हेन। वा अदना इस फ़िल मादी, इट्स फर्स्ट पर्सन, इट्स प्लूरल, एंड चूंकि वादा किया, अपॉइंट किया, तो फाइल भी है। मूसा इसम मंसूब, क्योंकि फाइल किस पे एक्ट कर रहा है, मफूल बिही पे, एंड इसमें अलम, इसमें अलम क्यों है, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम का नाम है, तो इट्स अ मैस्कुलिन प्रॉपर नाउन। ओके। अरबाइना इसम मंसूब, अगेन मंसूब क्यों है, क्योंकि मफूल बिही, अरबाइना इज ऑल्सो मफूल बिही, मैस्कुलिन प्लूरल नाउन। लैलतन इसम मंसूब एंड इट इज फेमिनिन indefinite noun। अरबाइना लैलतन, क्योंकि जब आप उसके साथ कंबाइन करते हैं मुदाफ मुदाफ इल, अरबाइना लैलतन मुदाफ, आई थिंक इट बिकम्स अ मुदाफ मुदाफ इलैह, एंड बट इसका नाम आप देंगे लैलतन, ठीक है, इसको आप नाम देंगे तमयीज, तमयीज। ओके, तमयीज जो है वो मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया। तमयीज इसलिए यूज होता है कि किसी चीज को, ठहरे मैं आपको अभी, आई थिंक आई put a definition somewhere last time, अगर मैंने नहीं बताया था तो मैं अभी आपको बताती हूँ। तमयीज मतलब किसी चीज को क्लैरिफाई करने के लिए होता है, किसी चीज को, जैसे आप कह रहे थे ना अरबाइन, अरबाइन आपको पता है कि रातों के बारे में बात हो रही है, लेकिन कोई पूछेगा अबाउट व्हाट, तो नाउ यू हैव टू क्लैरिफाई अरबाइन लैला, आई एम टॉकिंग अबाउट अरबाइन नाइट्स। ओके, उसको इसलिए ग्रामेटिकली उसका नाम होता है तमयीज। आई थिंक आगे आएगी या पीछे मैंने बता दिया होगा। सुम्मा, सुम्मा अगेन हरफियात, इट्स अ कंजंक्शन पार्टिकल। इत्तखज़तुमुल इजला फिल माजी, सेकंड पर्सन, मैस्कुलिन प्लूरल, और फाइल क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने बना लिया, अल इजला। इजला अगेन बिकॉज इट इज मफूल बिही, इट इज इसम मंसूब, मैस्कुलिन नाउन। मिन बादिही, मिन बाद में मिम इज हर्फ जर, और बादी बाद इसम मजरूर, बाद क्योंकि मिम बाद भी होता है लेकिन आगे ही भी है, तो ही क्या चीज है, दमीर मुत्तसिल, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, और मुदाफ मुदाफ इलैहि भी मिम बादिही, ठीक है। व अंतुम, ये अंतुम जो है ये मैंने आपको एंड कह दिया था शायद, या मैंने वाइल कहा था, आपको पता नहीं। इट्स अ वाउल हालिया, इट्स नॉट एंड, इट्स वाइल, सर्कमस्टेंशियल पार्टिकल है, यानी इसमें वाइल दमीर फिर आगे मुनफसिल है, यानी अंतुम,
Antum is detached pronoun, second person masculine plural. ज़ालिमीन while you were, हाँ एंड नहीं था वाइल है, ठीक है, मैंने शायद एंड कहा था, उसको चेंज कर लें आप, वहां पर तुम उसको वाइल कर ले, वाइल यू वर, एंड भी लिखे तो कोई रॉन्ग नहीं है वैसे। तो इट ज़ालिमून इसम मरफू मैस्कुलिन प्लूरल फाइल और खबर भी है अंतुम ज़ालिमून, ठीक है ना। तो इसकी थोड़ी सी तफसीर करते हैं, ज्यादा भी नहीं करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूजेस द वर्ड वाअदना, मैंने आपको अभी भी बताया वाअदना का मतलब है टू प्रॉमिस, टू गिव अ वर्ड और टू अपॉइंट। तो वो कौन सी अपॉइंटमेंट थी जिसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर रिफर कर रहे हैं? व्हाट इज अल्लाह ताला रिफरिंग ओवर हियर? जब बनो इसराइल हमने पढ़ा कि दे एस्केप्ड फ्रॉम इजिप्ट, ठीक है ना, और वो एंटर कहाँ पर हुए? माउंट साइनाई में, सिनाई पेनिनसुला में एंटर, माउंट नहीं सिनाई पेनिनसुला में एंटर हुए, और वहां अल्लाह ताला ने इनवाइट किया। वहां पर क्रॉस करने के बाद, दरिया क्रॉस करने के बाद अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया माउंट तूर पे, कोहे तूर पे, कितने दिनों के लिए? 40 days and 40 nights। कहीं पर कुरान में ये भी लिखा है कि 30 था, 30 से अल्लाह ताला ने उसको 40 कर दिया। तो 40 days के लिए अल्लाह ताला ने उनको बुलाया। अब ये था कि where did अल्लाह सुब्हानहू व तआला call मूसा अलैहिस्सलाम? It was at the कोहे तूर। What was this appointment for? What was this appointment? This is referring to the 40 days and 40 nights जिसके लिए वो गए। Now why did Allah Ta'ala call him मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों बुलाए उस appointed place पे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए बुलाया कि उनको laws दे, laws यानी उनको अहकाम दें, instructions दें, उनको commands दें। किसके लिए? For the guidance of people जो कि अभी अभी liberate होके आए थे slavery से। अब जब slavery में कोई होता है, उनके पास उनको laws उनके पास नहीं होती हैं। जो मालिक चाहते हैं, जो उनको जुल्म कर रहे होते हैं, वो जिस तरह भी उनको ट्रीट करें, देवर इन स्लेवरी, ठीक है ना, वो फिरौन की स्लेवरी में थे, उससे निजात दिलाई। तो अब उनके लिए लॉज आने थे ताकि उनको पता चले व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू, व्हाट वी आर नॉट सपोज्ड टू डू। जैसे हमारे पास लॉज हैं कुरान के और हदीस के कि दिस वी आर सपोज्ड टू डू एंड दिस अल्लाह फॉरबिड्स। लेकिन फिर क्या हुआ? लॉज वॉज वो लेने के लिए गए, लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, आफ्टर ही लेफ्ट फॉर हिज अपॉइंटमेंट, लोगों ने क्या किया उनकी एब्सेंस में? वही लोग, वही बनो इसराइल जिनको मूसा अलैहिस्सलाम छुड़ा के लाए थे अल्लाह के हुक्म से, उन्होंने एक काफ बना लिया, उन्होंने एक बछड़ा बना लिया और उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया। सामरी का जिक्र आएगा, वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, अब उस डिटेल में नहीं जाते हैं। बस इतना याद रखें कि एक काफ बनाया, एक बछड़ा बनाया और उसको वर्शिप करना शुरू कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाउ डिड दे गेट इनटू दिस शिर्क? इसलिए कि पहले भी, इससे पहले भी कनान जो है इजिप्ट में, उसमें बहुत कॉमन था काउ वर्शिप, ठीक है ना, काउ वर्शिप वहां बहुत ज्यादा, जैसे अभी भी आप देखते हैं हिंदुओं में है काउ वर्शिप, तो बहुत ज्यादा वहां पर कॉमन था। और नेबरिंग कंट्रीज में भी कॉमन था उस वक्त काउ वर्शिप। यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपको याद है ना, कनान से, कनान के बाद फिर वो मिस्र चले, मतलब कायरो, जहां भी चले गए थे वहां पर हुकूमत करने के लिए, आई थिंक कायरो में ही चले गए थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद बनी इसराइल जो है वो लोग फिर क्रिश्चियंस के स्लेव्स बन गए, यानी जो इजिप्शियन क्रिश्चियंस थे, यानी जो कॉप्टिक्स थे, कुतबी जिसको कहते हैं, उनके ये लोग स्लेव्स बन गए। और उन्होंने ये जो इविल प्रैक्टिस थी ऑफ काउ वर्शिप, ये इन लोगों ने अपने रूलर्स से सीखा, और अपने रूलर से उन्होंने और भी बहुत सारी जो उनके हुकाम थे, उनसे बहुत सारी अजीब अजीब चीजें भी सीखी। तो जब वो उन्होंने रिवर क्रॉस कर लिया, अब उनको वो काउ याद आ रहा था, उनको याद आ रहा था कि हमारी तो वर्शिप की कोई चीज ही नहीं है। तो ये इतनी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके आंखों के सामने सी स्प्लिट हुआ है। उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम उनको निकाल के फ्रीडम से उनको दूसरी तरफ लेकर गए, और उन्होंने देखा फिरौन को डूबते हुए भी, सब कुछ उन्होंने देख लिया, जो उनको टॉर्चर करते थे, फिर भी वो मूसा अलैहिस्सलाम पे डाउट कर रहे थे। ये देखें, हद होती है, मूसा अलैहिस्सलाम ने सब कुछ किया, फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम को पे उनको यकीन नहीं आ रहा था। आई मीन दे स्टिल वर्शिप गॉड, अल्लाह की इबादत वो करते थे, लेकिन वो गॉड क्या होता था? इट वाज अदर देन द गॉड ऑफ मूसा, क्योंकि गॉड में तो सब मान ही रहे थे। क्या नाम है, जूस भी मानते थे, क्रिश्चियंस भी मानते थे, लेकिन गॉड के साथ साथ क्या चीजों में बिलीव करते थे? वो चीजें जो गॉड की एट्रीब्यूट्स, जो अल्लाह की एट्रीब्यूट्स इस्लाम में है, वो एट्रीब्यूट्स ना जूस में है ना क्रिश्चियंस में है। तो वो जो है, वो अभी तक उसी गॉड के उनके दिमाग में वही गॉड थे, और वो ये नहीं देखते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें इतने मौजज़े से, अल्लाह ताला ने हमें बचाया है, तो वी शुड बिलीव इन दिस प्रॉफिट। वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए जहां पर उनको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए था।
لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کے اندر وہ جو ایمان ہے, ابھی ہم کلاس شروع ہونے سے پہلے ایمان کی بات کر رہے تھے, سرٹینٹی کی بات کر رہے تھے, بلیف کی بات کر رہے تھے, اور جب آپ آئے آپ نے دیکھا کہ امینہ کیا کہہ رہی تھی, امینہ یہی کہتی کہ ان کا بلیف جس کا بھی ہے ہمارا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, ہماری بلیفس جو ہے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آزمائش میں ڈالتے کوئی چیز لیتے ہیں تو کوئی چیز دیتے بھی ہیں. لیکن ان کے ایکشن سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک ٹرسٹ نہیں کر رہے آفٹر آل دس, ڈسپائٹ آل دیٹ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ظالمون تھے, اور ظالمون ان کو ڈسکرائب کیا اللہ نے, یعنی یہ لوگ ظلم کر رہے تھے, انجسٹس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی دفعہ ظالمون کا لفظ یوز کرتے ہیں, those who wrong themselves, those who wrong others, and those who wrong اپنے آپ کو کیوں کرتے ہیں, کیونکہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک پارٹنر بنا رہے ہوتے ہیں. تو آیہ نمبر 52 میں اس شرک کے باوجود, اس کاف کو بنانے کے باوجود سب کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. How beautiful. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سما, then, اردو میں پھر, عفونا, عین فا واو, عفا یعفو عفون. ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کتنا ہم پڑھتے ہیں لیلۃ القدر پہ. تو اس کا کیا مطلب ہے, یا اللہ آپ ہمیں forgive کر دیں. تو عفونا کا مطلب ہے we forgave, یعنی ہم نے معاف کر دیا. کس کو معاف کر دیا, انکم, آپ لوگوں کو, تم کو معاف کر دیا. یو, اللہ کہتے ہیں ایون دین, آپ لوگوں نے بچڑا بنا لیا, اس کی معبود بنا لیا, اس کی عبادت کرنے لگے, اس کو ورشپ کرنے لگے, اتنا بڑا شرک کا آپ نے وہ ایکٹ کیا, پھر بھی اللہ کہتے ہیں ایون دین I forgive you. This is what Allah is. اللہ forgives, اللہ نے معاف کر دیا. اور اللہ نے کہا من بعدی عفونا, we forgave عنکم, you, تم کو, من بعد ذالک, من بعد again با عین دال یعنی after, اردو میں بعد, جس طرح عربک میں بعد, ذالک یعنی that, after that, اس کے بعد بھی, آپ اردو میں لکھے اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم, so that you may, تاکہ تم یا تاکہ آپ, تشکرون. تشکرون is شین کاف را, اور شکرا یشکرو شکرن. ہم کہتے ہیں نا کسی کو شکریہ بولتے ہیں تو عربی کہتے ہیں نا شکرن. شکرن کا مطلب شکریہ بولنا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا تاکہ تم کیا کرو, تم سب شکر کرو, تم سب شکر کرو, so that you are grateful, تعالیٰ نے معاف اس لیے کیا کہ آپ grateful بن جائیں, ٹھیک ہے. اس کی گرامر دیکھ لیتے ہیں. ثم is حرف عطف یعنی کنجنکشن, عفونا فعل ماضی فرسٹ پرسن پلورل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, تو میجسٹک وی, رویل وی, اینڈ دین فاعل because Allah is forgiving. انکم, ان is حرف جر, کم is ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن, سیکنڈ پرسن میسکولن پلورل, آبجیکٹ پروناؤن انکم, جار و مجرور because of the حرف جر. من بعد حرف جر پلس اسم مجرور, also مضاف, اسم مجرور is also من بعد, ٹھیک ہے. اینڈ دین ذالکا, ذالکا از اسم الاشارہ, ڈیمونسٹریٹو پروناؤن, اسم الاشارہ بعید یعنی دور کے لیے دیٹ, اور نزدیک کا کیا, ہاذا اور ذالکا, ٹھیک ہے. بعید میسکولن سنگولر, اٹ از آلسو مضاف الیہ کیونکہ بعد ذالکا, من بعد اور بعد ذالکا دونوں چیزیں میں آپ دیکھیں مضاف الیہ آ گیا. لعلکم, لعل اس حرف نصب یعنی ایکوزیٹو پارٹیکل, اور اس کے بعد پھر کم, لعل, اور پھر کم از ضمیر متصل, اٹیچ پروناؤن, سیکنڈ پرسن میسکولن پلورل, آبجیکٹ پروناؤن, اٹ از آلسو کالڈ اسم لعل. پہلے بھی بتا چکے ہیں لعلکم, تو جیسے اسم انہ ہے, اسم انہ ہے, اسم لعل بھی ہے, ٹھیک ہے. تشکرون اس فعل مضارع, second person masculine plural fa'il, it is also khabar la'alla, so that you may become grateful or you may be grateful. Tafsir of ayah 52, Allah uses the word afawna which means to pardon or to forgive, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ offered his forgiveness کس شرط پہ, as long as they followed his commands. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے کہ آپ نے شرک کر لیا لیکن آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو, اللہ کی عبادت کر رہے ہو, اللہ کی اطاعت کر رہے ہو. And because these people, the Banu Israel, they followed the law at that time, جب ان کو لا دیا, لا ان کے پاس جو بھی تھا اس کو فالو کر رہے تھے. ابھی تو آپ کو بتایا نا ان کے لیے نئے لاز آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, لیکن اس وقت بھی وہ لاز جس کو بھی فالو کر رہے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ accepted their repentance, اور ان کو کلیئر بتا دیا کہ میں آپ کو معاف کر رہا ہوں, آپ نے جو کچھ بھی غلطی کی, آپ نے شرک بھی کر لیا, پھر بھی معاف کر رہا ہوں, so that
you are grateful. लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, वही जूस जो कि जिनको अल्लाह ताला ने सेव किया था, वही जिनको बनी इसराइल को क्रॉस कराया था दरिया, वो सब कुछ किया, उनको ये लगना शुरू हो गया कि हम तो सेव्ड पीपल हैं. पहले वो कहते थे हम चोजन पीपल हैं, अब वो कहते थे हम सेव्ड पीपल हैं. एथनिसिटी भी उनको याद आती है कि हम जूस हैं, हमारे पास इतने पैगंबर आए. मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत देर से आए ना, उससे पहले जो इतने पैगंबर आए, वो जो आए बनी इसराइल में, तो वो कहते हैं हमारे पास इतने पैगंबर आए तो हम तो चोजन है. नंबर 2 क्या है, वो कहते हैं हम तो सेव्ड भी हैं, अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया. सो नाउ उनका प्राइड जो है वो और ज्यादा बढ़ने लग गया, और क्या होने लगा, वो अल्लाह की लॉज को इम्प्लीमेंट करने में दे बिकेम रिलैक्स्ड. उसके बाद क्या हुआ, क्रिश्चियंस आए, जूस थे, जूस के बाद फिर क्रिश्चियंस भी आए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम आए. जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्टार्ट कर दी. जब क्रिश्चियनिटी उन्होंने नहीं स्टार्ट की, उनके लोगों ने स्टार्ट की, सॉरी मेरे मुंह से ऐसे लगा, उन्होंने, आपको ये लगा होगा मैं ईसा अलैहिस्सलाम वाज जो भी, वो भी मुसलमान थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे और अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे. लेकिन उनके लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ऑल टुगेदर जो है अल्लाह के लॉज को बिल्कुल ही अबेंडन कर दिया, समझ लें. और वो उन्होंने क्या नई चीज शुरू कर दी, एक और किस्म का शिर्क शुरू कर दिया. और उन्होंने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो, हम तो ये नहीं मानते ना कि उनकी वफात हुई, हम तो ये कहते हैं ही इज अलाइव विद अल्लाह. लेकिन उन्होंने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम डाइड ऑन द क्रॉस फॉर देयर सिंस. तो अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम में बिलीव करते हैं तो आपको पता है कि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं. दिस इज अनदर ट्रिक जो कि शैतान ने उनको फूल करने के लिए उनको बनाया, एंड दे फेल फॉर इट. हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक देखें, हम अल्लाह ताला की अताअत करते रहें, और जो कुछ भी है हम अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पे चलते रहें, और अल्लाह ताला हमारी तौबा को भी हमेशा एक्सेप्ट करता रहे. या रहमान भी है, रहीम भी है, तव्वाब भी है, हमें हर वक्त अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए. आया नंबर 53, व इज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून. अब अल्लाह ताला ने इनकी बात करके अब मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं कि जब वो गए कोहे तूर पे तो अल्लाह ताला ने क्या किया. वहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं व इज़ एंड व्हेन, और जब. आतैना is form 4 of root letters हैं हमजा ता या, और it is आता युति ईताउन, ठीक है, आता युति ईताउन, ये form 4 है. यानी अल्लाह कह रहे हैं we gave, अल्लाह कहते हैं मैजेस्टिक वी में वी गेव, हमने दिया, हमने अता किया. उर्दू में भी हम कहते हैं ना, उर्दू में खैर अता कहते हैं जो है ऐन से है, और आतैना ये जो है ये हमजा से है, ठीक है ना. तो किसको दिया, अल्लाह ताला कहते हैं हमने अता किया, हमने दिया, किसको दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को. आतैना मूसा, टू मूसा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को हमने क्या दिया, अल किताब. अल किताब क्या चीज है, द बुक. काफ ता बा रूट लेटर्स हैं, और कौन सी किताब थी, तौरा. हम सबको मालूम है कि एक खास अल किताब एक खास किताब है. एंड व्हाट बुक वाज दैट, इट वाज तौरा, ठीक है ना, द बुक ऑफ लॉ. तौरा जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, आई गेव हिम लॉज, तो वो बुक ऑफ लॉज है, वो अल्लाह ताला ने दिया. अल किताब इसलिए कहा जाता है कि लिखा हुआ था, वो बुक की फॉर्म में नहीं था, टैबलेट्स की फॉर्म में था. हमने पढ़ा है ना कि टैबलेट्स थे, उन टैबलेट्स के ऊपर अलवाह जिसको कहते हैं ना, उन अलवाह के ऊपर लिखे हुए थे, लेकिन तमाम कमांडमेंट्स लिखे हुए थे, जितने भी जरूरी हैं सब कमांड्स थे, और सबकी एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में थी. हमें पता, हम तो ऐसे ही कहते हैं ना 10 कमांडमेंट्स, और हम कहते हैं बस ये काफी है. वो 10 कमांडमेंट्स इनसे सिंपल एक एक लाइन के नहीं थे, वो तो उनका जिस्ट है. तो ये बुक अल्लाह ताला ने बुक इसलिए कहा कि लिखा हुआ था. किस चीज पे लिखा हुआ था, टैबलेट्स पे लिखा हुआ था. ये खास बुक जो है, लिखी हुई चीजें, लॉज जो है, ये अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी. और फिर साथ अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उनको किताब भी दी, लिखी हुई. वल फुरकान, फुरकान क्या चीज है, फ़ फ़, आपने देखा था ये फिर्क जुदा करने वाली बात होती है. पहले हमने पढ़ा था ना कि जब समंदर पार्ट हुआ, सी पार्ट हुआ, तो उसमें क्या होता, दो फर्क फराका आ गया था. तो इसमें भी ये फिर्क या फर्क जो भी आप कह लें, तो क्या चीज है, ये क्राइटेरियन है. फुरकान एक क्राइटेरियन है जिसके, यानी जो फर्क करने वाला, किस चीज में, डिस्टिंग्विश करने वाला, विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड. अल फुरकान का मतलब है दैट विच distinguishes between truth and falsehood. और उसको एक लफ्ज में आप कहेंगे द क्राइटेरियन. द क्राइटेरियन आपने लिखना, आप उसके डिटेल में लिखें विच डिस्टिंग्विशेस, लेकिन आपने एक वर्ड यूज करना, आपके द क्राइटेरियन. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गेव, क्या चीज दिया, एक तो उनको लॉज दिए, और फिर उनको क्राइटेरियन दिया. क्राइटेरियन दिया उनको, यानी हक और बातिल में फर्क करने वाले दलाइल, कि मतलब ये हक है, ये फॉल्सहुड है, और क्यों.
लअल्लकुम अगेन वो आ गया so that you may, ताकि तुम सब तहतदून, पहले तशकुरून था अभी तहतदून आ गया, तहतदून so that you may be guided, you may be guided. हादाल या इhtदा यहतदी इhtदाउन, इhtदा यहतदी इhtदाउन, ये फॉर्म 8 है. यानी अल्लाह ताला कहते हैं लअल्लकुम so that you may be, और तहतदून you all may be guided. जब आप उसको जोड़ के लिखेंगे so that you all may be guided, दो दफा you नहीं लिखेंगे, ताकि तुम सब हिदायत हासिल कर सको, तुम सब हिदायत पा सको. ठीक है, ग्रामर देखते हैं. वह वाउल अत्फ and is ظرف زمان, adverb of time. आतैना फिल मादी फर्स्ट पर्सन प्लूरल फाइल, अल्लाह कह रहे हैं कि हमने अता की. उसके बाद है मूसा, मूसा बिकॉज किसको अता की, मूसा अलैहि सलाम को, तो इसम मंसूब मफूल बिही इसमें आलम मैस्कुलिन प्रॉपर नाउन. अल किताब, किताब जो दी थी, अगेन दिस इज मफूल बिही क्योंकि किताब दिए गए थे. इसम मंसूब बिकॉज ऑफ बीइंग मफूल बिही मैस्कुलिन डेफिनेट नाउन अल किताब. वल फुरकान, वावुल अत्फ फुरकान के लिए वावुल अत्फ है. वल फुरकान, फुरकान इज ऑल्सो बिकॉज दैट वाज गिवन, वो भी मफूल बिही हो गया, इसम मंसूब हो गया, मैस्कुलिन डेफिनेट नाउन. लअल्लकुम हरफ नसब प्लस दमीर मुत्तसिल, अभी अभी आपने पढ़ा था, डिटेल में नहीं जाते हुए, इस्मुल अल्लाह. ठीक है, तहतदून फेल मुदारे सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल आल्सो फाइल, एंड आल्सो जिस तरह वो था यहाँ भी ये खबरु लअल्लाह है. तफसीर क्या है इसकी, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है बन्नो इसराइल को अगेन एक चीज रिमाइंड करा रहे हैं कि उस वक्त एट दैट वेरी टाइम जबकि वो शिर्क का ईवल कमिट कर रहे थे, वो शिर्क कर रहे थे, उन्होंने जब वो वहां पर बछड़े को उन्होंने माबूद बनाया हुआ था, दे वर वर्शिपिंग द काफ, उसी टाइम पे एट दैट वेरी टाइम ही गेव मूसा अलैहि सलाम क्या चीजें, दो चीजें दी, वो कह रहे हैं. एक वो बुक दिया यानी लिखी हुई चीज दी, एंड द क्राइटेरियन अल्लाह ताला उसी चीज को कह रहे हैं जो अल्लाह ताला ने भेजी. इसलिए मैं कह रही हूँ इट्स नॉट जस्ट 10 कमांड्समेंट सिंपल एक टैबलेट पे लिखा हुआ है, नहीं, इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉज एज वेल. तो वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आई गेव हिम, अल्लाह खुद कह रहे हैं आई गेव हिम द किताब एंड द फुरकान. उसका मतलब हमने रिटन वो भी दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, और ऐसी चीज दी है जिससे क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जाता है कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, ताकि आप लोग गाइडेड हो जाओ. तो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर फुरकान का लफ्ज किसके लिए यूज करें, तौरा के लिए, तौरात जिसको हम कहते हैं, तौरेत भी कहते हैं, तौरात भी कहते हैं. और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये डिस्टिंग्विश करता है या सेपरेट करता है. तो ये तौरात जो है डिस्टिंग्विश कर रहा था उस वक्त जो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ द रिलीजन, जिससे उनको पता चला था क्या गलत है क्या सही है. इन अदर वर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बता रहे हैं कि मैंने आपको एक क्लियर पाथ बता दिया, एक रोड बता दी है कि आप इस हाईवे पे चलें, एग्जिट्स ना लें. अगर आप इस हाईवे से एग्जिट लेंगे तो आप कहीं और पहुंच जाएंगे. दिस इज द हाईवे, यू हैव टू फॉलो दिस. अपना जीपीएस अपने सामने रखें और आप इसको फॉलो करते रहें. अगर वो उसी जीपीएस को फॉलो करते तो वो लोग कहाँ जाते, वो सीधे सीधे अल्लाह के लॉज को फॉलो कर रहे होते, एंड अल्लाह वुड फॉरगिव देम. लेकिन हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे लिए अब क्या चीज है, वो तौरा जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को दिया था, उसको it has been changed from time to time. अभी it is no longer in its original form. तो हमारे लिए अब हम ये नहीं कह सकते हम तौरा को पढ़ के हम करेंगे. तौरा में जो कमांडमेंट्स हैं जो कुरान ने कंफर्म किए हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि ये कंफर्म कर रहा है, तस्दीक कर रहा है which was already in the previous books. तो जो चीजें कुरान कंफर्म करती है ऑफ द तौरा, it is okay, you follow them. लेकिन जिस चीज में कुरान कंफर्म नहीं करती है, कुरान इज साइलेंट ऑन दैट, वे हम उस पर खामोशी रहेंगे. हम ये नहीं कह सकते कि अब हमारी किताब तौरा भी है और कुरान भी है. अब हमारी किताब क्या है, क्योंकि वो तो ओरिजिनल फॉर्म से चेंज हुई, कुरान ओरिजिनल फॉर्म में है. अल्हम्दुलिल्लाह अब कुरान हमारे लिए फुरकान है. अल्लाह ताला इसके लिए भी यही लफ्ज यूज करते हैं, कुरान के लिए भी फुरकान का लफ्ज. अब हमें कुरान को फॉलो करना है, तौरा को नहीं करना है. अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे कि who recite the Quran, who understand it correctly, and we are able to distinguish the truth from falsehood. अल्लाह ताला हमें हक पर चलने की तौफीक दे और बातिल की तमीज करने की तौफीक दे कि यह हमारा रास्ता नहीं है. आया नंबर 54. अब ये एक बड़ी लंबी आयत है, इसको मैं सोच रही थी क्या करूं, इसमें यू लूज ट्रैक. मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैंने इसको ब्रेक कर दिया. इसको ब्रेक किया ताकि आप एक एक चीज को इसमें अंडरस्टैंड कर सके. इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इट्स इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन. वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ला. अब वइज़ क़ाल, और जब कहा, एंड व्हेन सेड,
किसने कहा, and when said किसने कहा, आगे चूंकि सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है मूसा अलैहिस्सलाम ने, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, and when मूसा अलैहिस्सलाम said, और काला का आपको पता है काफ व लाम आप पढ़ चुके हैं कई दफा, ली कौमिही, ली का मतलब है टू, कौमिही टू हिज पीपल, टू हिज नेशन, अपनी कौम से, अपने लोगों से। और आई थिंक आप ये पहले पढ़ चुके हैं, काफ व मीम इसके रूट लेटर्स हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या कौमी, ओ माय पीपल, ओ माय पीपल, ए मेरी कौम। अब ये या कौमी था, जैसे मैंने आपको बताया ना इसमें या था, लेकिन वो या महजूफ हो गया, तो या कौमी, जैसे पहले भी आपको बताया तत्तकूनी, फरहबूनी, इसी तरह का ये भी है या कौमी, ओ माय पीपल, जिसका एंड में से या गायब है, वो गायब हो जाता है और उसके बाद it becomes oh my people, ठीक है, oh my people, oh my nation, ए मेरे लोगों, ए मेरी कौम, जो आपको अच्छा लगता है लिख लें। इन्नकुम, इन्ना means indeed, कुम means you, यानी यकीनन तुम, यकीनन तुम, बिला शुबा तुम या आप, ज़लम तुम, अगेन ज़ोए लाम मीम, you have wronged, आपने wrong किया, आपने ज्यादती की, आपने जुल्म किया। ज़लमा यज़लिमु ज़ुल्मन, ज़लमा यज़लिमु ज़ुल्मन, तुमने जुल्म किया या आपने जुल्म किया। अनफुसकुम, किस पे जुल्म किया, अनफुसकुम, नून फा सीन, नफ्स, ऑन योर सेल्व्स, आपने अपने आप पे जुल्म किया, आपने अपनी जानों पे जुल्म किया, किसी और पे जुल्म नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बित्तिखाज़िकुम, बी इज बाय या वेद या बाय, बाय कह लें, बाय वही अखजा, इसके जो रूट लेटर्स हैं हमजा ख जाल, और बाय योर, बित्तिखाज़िकुम, बाय योर टेकिंग, तुम्हारे लेने की वजह से, तुम्हारे लेने की सबब आपने किस चीज को लिया, यानी तुम्हारे माबूद बनाने की वजह से। किसको माबूद बनाया, अल इजला, द काफ, आप पढ़ चुके हैं अभी, बछड़े को। बिकॉज यू टुक द काफ as a mabud, as a object of worship, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने अपने ऊपर जुल्म किया। मतलब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आपने जुल्म किया। इसको यहाँ तक रोक के फिर आगे पढ़ते हैं। ये अभी कंटिन्यू हो रही थी, आया नंबर कंटिन्यू हो रही है, तो इसमें पहले ग्रामर देख लेते हैं। व इज वाउल अत्फ प्लस ज़र्फ़ ज़मान, एडवर्ब ऑफ टाइम। क़ाला फिल माज़ी थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, मूसा इसम मरफू मैस्कुलिन, अभी हमने पढ़ा इसम अलम। ली क़ौमिही, ली इज हर्फ जर एंड क़ौम इज इसम मजरूर। मैस्कुलिन नाउन क्यों मजरूर है, ली के वजह से, हर्फ जर है उसकी वजह से ये मजरूर है। प्लस द थर्ड थिंग इज ली क़ौमिही, ही दमीर मुत्तसिल, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन मुदाफ इलैहि। ली क़ौमिही, अपनी कौम से कहा, उसकी कौम से कहा। या कौमी, या इज हर्फ निदा वोकेटिव पार्टिकल, एंड कौम इज मुनादा। मुनादा अगेन इट इज इसम मंसूब, मैस्कुलिन नाउन मुदाफ भी है, प्लस कौमी था दमीर मुत्तसिल जो कि कौमी बन गया। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे आपको बताया, या इज महजूफ एंड इट इज आल्सो मुदाफ इलैहि। या कौमी, ओ माय पीपल, ओ माय नेशन। इन्नकुम, इन्ना इज हर्फ नसब यानी एक्यूजेटिव पार्टिकल, और कुम इज दमीर मुत्तसिल सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और चूंकि इन्ना है तो इसको इस्म इन्ना भी कहेंगे। ज़लम तुम फिल मादी, ज़लम तुम, यू रॉन्ग्ड, है ना, सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल फाइल। अनफुसकुम, अनफुसकुम बिकॉज जुल्म इज बीइंग डन ऑन समबडी, तो फाइल था ज़लम तुम, और फिर उसके बाद अनफुसकुम इज इसम मंसूब बिकॉज इट इज मफूल बिही। एंड अनफुस आप कहते हैं नफ्स क्या चीज है, फेमिनिन है, तो फेमिनिन प्लूरल नाउन और मुदाफ भी बन गया, और प्लस कुम, कुम दमीर मुत्तसिल, अगेन ये आपको मालूम है, इसका ग्रामर बार बार नहीं बोलूंगी। बित्तिखाज़िकुमुल इजला, बित्तिखा, बी इज हर्फ जर, देन इत्तिखाज़ा इज इसम मजरूर, इसम बित्तिखाज़िकुम इसम पूरा इसम मजरूर, और इट इज फाइल, आपने ले लिया, किस चीज को ले लिया, आपने दमीर मुत्तसिल। इत्तिखाज़िकुमुल इजला ये इसम मजरूर है कि नहीं, बित्तिखाज़िकुम, हाँ, बिकॉज यू टुक द काफ, चलो बाद में सोच के बताते, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो। दमीर मुत्तसिल, कुम है मैस्कुलिन प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन, कभी कभी मैं लिख रही होती हूँ जल्दी जल्दी और उसको दोबारा से चेक नहीं करती हूँ। अल इजला इज इसम मंसूब बिकॉज इट इज मफूल बिही, मैस्कुलिन डेफिनेट नाउन, जैसे आपको मैं बताया एक खास काफ के बारे में था जो गोल्डन काफ उन्होंने बनाया था जेवरों को पिघला के।
اب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہمیں قرآن میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا اور ساتھ آگے یہ کہا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ سنیں. فَتُوبُوا تا واو با، جس طرح توبہ کرتے ہیں تابا یتوبو توبتن، جیسے توبہ ہے تابا یتوبو توبتن، تو وہ کہہ رہے فتوبو، سو ٹرن ان ریپینٹنس. ٹرن ان ریپینٹنس اس کا مطلب اردو میں کیا ہے؟ بس تم رجوع کرو، بس اللہ سے رجوع کرو، تم توبہ کرو، توبہ کرو. ٹھیک ہے نا، توبہ کرو از ایزی. فتوبو توبہ کرو، الا یعنی ٹو یا ٹوورڈز کی طرف، باری باری کون ہے؟ با را حمزہ، با را حمزہ، شاید یہ پہلے ہم نہیں پڑھا بھی. باری کا مطلب ہے کریٹر، بنانے والا. تو جو آپ کا کریٹر ہے، جیسے خالق ہے اسی طرح باری بھی ہے. ٹھیک ہے نا، الباریو آپ نے پڑھا نا، اللہ کے ناموں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ از یور کریٹر، یور ماسٹر. آپ کہہ رہے ہیں تمہارے خالق، تمہارے پیدا کرنے والے، جو باری آپ کے پیدا کرنے والے، یور کریٹر، یور ماسٹر، آپ کے خالق، آپ کے پیدا کرنے والے. فقتلو، اب یہ الفاظ غور سے سنو. فقتلو، قاف تا لام، کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ قتل کرنا. قتل یقتلو قتلن، قتل یقتلو قتلن. سو فا کا مطلب ہے سو، اقتلو کل، قتل کرو یعنی پس قتل کرو. کس کو؟ انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو قتل کرو. یور سیلفس، سو کل یور سیلفس. اب اس کے بعد ذالکم، دیٹ از یعنی وہ یا وہی ہے، خیرن، خا یا را یعنی خیرن از بیٹر. اٹ از بیٹر، یہ بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اٹ از بیٹر لکم فار یو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. یہ مطلب موسیٰ علیہ السلام کے ورڈز ہیں لیکن قرآن کے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ جو حرکت کی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ توبہ کریں. اور کس طرح توبہ کریں گے؟ آپس میں اپنی جانوں کو مار کے. کس طرح؟ دس ول بی بیٹر. آئندہ کا مطلب ہے ود، آپ پڑھ چکے ہیں، پاس یا نزدیک یا قریب. کس کے نزدیک؟ باریکم، یور کریٹر، یور ماسٹر، تمہارے خالق، وہی سیم ورڈ ہے. اس کے بعد اس کے گرامر کو دیکھ لیتے ہیں. فاول عطف ہے، اور فتوبو یعنی فعل الامر ہے، حکم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، سیکنڈ پرسن کو حکم دے رہے ہیں، میسکولن پلورل، اور فاعل حکم دے رہے ہیں ان کو. الا حرف جر، باریکم اسم مجرور کیونکہ الا آ گیا، میسکولن سنگولر ناؤن مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے. آگے باقی سب وہی ہے، سیکنڈ پرسن میسکولن پلورل. I won't repeat. فقتلو، again this is an order, it is فعل الامر. فا is فاعل عطف، تو فقتلو، so فعل الامر is second person masculine also فاعل. الحمدللہ یرحمک اللہ. مائک پلیز بند کر دیں. فقتلوا انفسکم، انفسکم اپنی جانوں کو، جس کا ہے اسم منصوب کیونکہ اٹ از مفعول بہ، اپنے آپ کو آپ لوگ قتل کرو. اینڈ انفسا جیسے بتایا تھا فیمینن پلورل ہے، مضاف. اینڈ کم آپ سب کو معلوم ہے، کم کو میں ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں. ذالکم اسم الاشارہ بعید، اگین اٹس سیکنڈ پرسن میسکولن پلورل. اینڈ خیر اسم مرفوع یعنی اٹ از خیر، اٹ از بیٹر، میسکولن سنگولر انڈیفینٹ ناؤن، اٹ از آلسو خبر. ٹھیک ہے نا، خبر آف واٹ؟ ان ذالکم خیر، this is بہتر، لکم for you, again حرف جر پلس ضمیر متصل، same second person masculine plural whatever, right. آئندہ is اسم منصوب، ظرف مکان. آئندہ is، آپ کو میں نے بتایا نا ہم دو چیزیں پڑھتے ہیں زیادہ تر، لوکیشن ایڈورب اینڈ ٹائم ایڈورب. یہاں پر آئندہ یعنی اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب، اللہ کے پاس، ظرف مکان ہو گیا. ٹھیک ہے، اٹ از آلسو مضاف کیونکہ اس کے ساتھ ان دا باری آ گیا نا، ان دا باریکم اسم مجرور، باری اسم مجرور ہے، مضاف الیہ فار آئندہ، اینڈ پھر کم آپ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ فار باری بھی، باریکم. اس کے بعد پھر بھی یہ آیا ابھی تک کنٹینیو ہو رہا ہے، آیا نمبر 54. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. فتاب، فتاب، سو اب یہاں پر دیکھیں فتاب علیکم، یاد ہے آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا بہت پہلے، تاب الی کیا ہوتا ہے اور تاب علی کیا ہوتا ہے، تاب الی اور علی میں کیا ڈفرنس ہے. تو یہاں پر فتاب اللہ کا ہے، علیکم، سو کس نے توبہ کی؟ توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ ایکسیپٹ کی. سو یاد رکھیے گا، فتاب علیکم، سو ہی یعنی اللہ ٹرن ٹورڈز یو. فتاب، سو ہی ٹرنڈ ٹورڈز یو یعنی ہی ایکسیپٹڈ یور ریپینٹنس.
अलैकुम यानी तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हुआ अल्लाह ताला और उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली. सो अल्लाह टर्न टुवर्ड्स यू. अल्लाह का लफ्ज नहीं लिखा ताबा अल्लाह के लिए क्योंकि यहाँ पर अल्लाह आया हुआ है. ठीक है, ये याद रखिएगा. छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप कुरान पढ़ रहे हो आपको याद, इला के बदले अल्लाह पढ़ लिया तो बिल्कुल उल्टा मीनिंग हो गया, अल्लाह के बदले इला पढ़ लिया तो बिल्कुल उल्टी मीनिंग हो गई. इसलिए कहते हैं ना एक एक हर्फ को गौर से पढ़ें आप, एक एक लफ्ज को. इन्नहु इंडीड, बेशक वो, इन्ना हु बेशक वो, यकीनन वो, हुआ अगेन फिर रिपीट हो रहा है यानी ही इज, इंडीड ही इज, वो है, या आप उर्दू में कहेंगे वो ही है. वो ही कौन है? वो ही अत्तवाब, वो ही तौबा कबूल करने वाला है. ये भी हम पढ़ चुके हैं. द कांस्टेंट एक्सेप्टर ऑफ रिपेंटेंस यानी बार बार तौबा कबूल करने वाला है. इस पे हमने अच्छी खासी लंबी बात की थी कि अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल करते हैं. ये नहीं कि एक दफा हमने कर ली उसके बाद अब तो हम डूम हो गए. नहीं, वी कैन बी डूम्ड इफ वी कंटिन्यू द सेम थिंग एंड वी डोंट मेक तौबा अगेन एंड वी डाई इन दैट स्टेट. लेकिन आपको जब तक मौत आपके गले में नहीं आ जाती है, जब तक आपकी रूह है चल रही है आपके अंदर, आपको मौत नजर नहीं आती, आप तौबा कर सकते हैं. तो अल्लाह इज व्हाट, ही इज द कांस्टेंट एक्सेप्टर ऑफ रिपेंटेंस, बार बार तौबा कबूल करने वाले हैं. और अर रहीम, ही इज कॉन्स्टेंटली मर्सीफुल यानी हमेशा रहम करने वाले हैं. तो तौबा की भी आपको और रहीम की भी, दोनों के आपको रूट लेटर्स मालूम है. ग्रामर देख लेते हैं. फाउल अत्फ है, फिल माजी ताबा यानी अल्लाह ताला की, ये पास्ट टेंस में यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन. फाइल भी. अलैकुम अगेन हरफ जर प्लस दमीर मुत्तसिल, सेम लंबी चौड़ी. फिर इन्नहु, इन्ना इस हरफ नसब यानी एक्यूजेटिव पार्टिकल और दमीर मुत्तसिल है इसके साथ हु, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर. और इन्ना हु जो है, हु इज ऑल्सो इस्मो इन्ना. हुआ इज दमीर मुनफसिल, डिटैच्ड प्रोनाउन, मैस्कुलिन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन. ये एम्फेसिस के लिए दिया अल्लाह ताला ने. इन्ना, अगर इन्ना तवाब भी होता तो भी इन्ना हु तवाब रहीम भी होता, लेकिन इन्ना हुवा तवाब रहीम, वही है जो तौबा कबूल करने वाला है. अत्तवाब के इसम मरफू मैस्कुलिन सिंगुलर, इट्स डेफिनेट नाउन क्योंकि अल्लाह के नामों में से भी एक है. इट इज ऑल्सो फाइल एंड इट इज ऑल्सो अ खबर फॉर हुआ, हुआ अत्तवाब. ठीक है ना, हुआ तवाबू. तो अल्लाह के लिए वो हुआ जो है दैट इज मुब्तदा एंड दिस इज खबर. अर्रहीम इज इसम मरफू. And why is it marfu? Because it is a sifa of at-tawwab. Again, अल्लाह के सिफात में से है. at-tawwab रहीम सिफा मरफू है, मैस्कुलिन सिंगुलर एडजेक्टिव है. ठीक है, अब इसकी लंबी चौड़ी आयत होगी. अब आया 54 की मैं थोड़ी सी तफसीर करना चाहती हूँ. तो जब मूसा अलैहिस्सलाम he returned to his people, किस चीज को लेकर आए? अपने साथ गिफ्ट लेकर आए, डिवाइन गिफ्ट, अल्लाह की दी हुई एक गिफ्ट. और वो गिफ्ट क्या थी? वो तौरा. उस तौरा को लेकर आए तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि अब मैं अल्लाह के लॉज लेकर आया हूं, तुम लोगों ने पीछे से ये सब किया है, अब तुम लोग तौबा कर लो अल्लाह से कि आइंदा ये नहीं करोगे. आप लोग तौबा कर लो. और आप में से जो लोग इनोसेंट हैं, जिन्होंने बछड़े को माबूद नहीं बनाया था, जो आप में से मासूम है, जिन्होंने ये गुनाह नहीं किया था, शिर्क का गुनाह, अल्लाह ने तो माफ कर दिया. लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि अब ये हमारी विजडम से बाहर है. तो अल्लाह ताला ने फिर भी कहा कि जो इनोसेंट लोग हैं वो आपके दरमियानी जूस को कहा, आपके अंदर ही जो गिल्टी लोग हैं, जो कि जिन्होंने गलत काम किया था, उनको खुद ही आप मार लें. ये रिपेंटेंस किसके लिए थी? ये हमारे लिए नहीं है. अब हमें अल्लाह ताला ने हमारे रूल्स में ये नहीं लिखा हुआ कि आपने तौबा कर लिया फिर एक दूसरे को मारो. याद रखें, ये उस वक्त का था. उस वक्त उनके लिए बहुत बड़ी सजा थी. और अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि आप लोग जो बनी इसराइल हैं, आप लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया. ईच जूविश ट्राइब वाज टू किल इट्स ओन मेंबर्स. ये नहीं कि मैं जाके मारूं और आप जाके मारे, हम भी इसको मारते हैं, हम भी मारते हैं. नहीं, उस वक्त हम नहीं थे. उस वक्त वही जूस लोग थे. और ये इससे पता चलता है कि उन्होंने ये जो काम किया था, बनी इसराइल ने एक बछड़े को माबूद बना लिया था. उन्होंने अपने अल्लाह के साथ, अपने खालिक के साथ उन्होंने बछड़े को माबूद बनाया था. दिस इज अ ह्यूज थिंग. अभी आप देखते हैं, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, हिंदुओं में चल रहा है. लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह कहा ना कि अब आप अपने लोगों को, उनको कत्ल करो. किन लोगों को कत्ल करो? ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो की एक हदीस में वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और आपको पता है अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है वो बहुत अच्छे तफसीर, उनकी बेस्ट तफसीर थी, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द कुरान. सहाबी थे, बहुत करीबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. अब्दुल्ला इब्न अब्बास यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई
भाई भी थे, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने, वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला टोल्ड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, उन्होंने बनी इसराइल से कहा कि आपकी रिपेंटेंस, आपकी तौबा ये होगी कि आप अपनी तलवार से, टू किल बाय द स्वॉर्ड every person they meet, be he their father or their son, they should not care whom they kill. ये बहुत हमें बहुत ही डरावना लग रहा है कि ऐसे अल्लाह ताला ने कैसे कहा कि अपने भाई को, अपने बाप को, लेकिन अल्लाह ताला अगर ये उस वक्त नहीं कहते और उस वक्त ही इम्प्लीमेंट नहीं होता तो हम इस चीज को बहुत लाइटली लेते कि शिर्क करने में क्या है, एक गाय को अल्लाह के साथ इक्वेट करने में क्या है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि नॉर्मल केस में क्या होता है, एक इंसान को मारना इज अ मेजर सिन, गुनाह कबीरा, लेकिन हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया मूसा अलैहि सलाम के थ्रू कि आप एक अपने ही लोगों को मारो, और वो यही कह रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं, एंड इट वुड बी बेटर फॉर देम, killing would be better if they fulfilled his command. Allah subhanahu wa ta'ala would accept their repentance. अगर वो अपने लोगों को मारेंगे अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लेंगे। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला को कंप्लीट अथॉरिटी, वैसे भी हमें मालूम है, लेकिन अगेन ये कंफर्म होता है कि अल्लाह ताला के पास बिल्कुल कंप्लीट अथॉरिटी है, जो चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें अपनी मखलूक के साथ कर सकें। अगर वो कह रहे हैं कत्ल करो तो कत्ल करो, अगर वो कह रहे हैं कि माफ करो तो माफ करो। हमें एब्सोल्युटली कोई हक नहीं है, नो अथॉरिटी व्हाटसोएवर टू क्वेश्चन हिज विजडम। भाई वो क्रिएटर है, जो उन्होंने सोचा उन्होंने किया। हमें सिंपली व्हाट डू वी हैव टू डू, समयना व अताना, बस जो अल्लाह ताला कह रहे हैं उनके कमांड्स को ओबे करो, इवन इफ दे डोंट मेक एनी सेंस टू अस। क्यों? हमारी नॉलेज, हमारी विजडम सब लिमिटेड है। तो जो लोग गिल्टी थे उन्होंने अपने सिंस को एडमिट कर लिया, और देखें, और उन्होंने वही किया जो उनको, और जो गिल्टी नहीं थे उन्होंने फिर उनको कत्ल कर दिया। अब ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने अपने सिंस को एडमिट कर दिया, क्योंकि सबसे अमेजिंग बात क्या है इसमें, आप बताएं, मुझे तो यही अमेजिंग लगती है कि मूसा अलैहि सलाम को भी नहीं पता था कि कौन गिल्टी है कौन नहीं गिल्टी है, कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है। हारून अलैहि सलाम जो उनके भाई थे जिनको पीछे छोड़ के गए थे, उनको भी नहीं पता था कि कौन गिल्टी है कौन इनोसेंट है, लेकिन जो गिल्टी थे उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया। तो इसीलिए इसका रिजल्ट क्या हुआ, अल्लाह ताला ने जिसको जो मारा गया, अल्लाह की राह में ही मारा गया ना, बिकॉज उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसको मार दिया गया। अल्लाह ताला ने फॉरगिव कर दिया किलर को भी और द वन हु वाज किल्ड, दोनों को, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा को हमेशा एक्सेप्ट करने वाला है। वही रहमान है, वही रहीम है, उसी के लॉज हैं, उसी के लॉज को पूरा करना था। नेक्स्ट आयत शुरू, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो वी कैन वेट फॉर द क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम नेक्स्ट आयत को शुरू कर लेंगे। बताइए प्लीज, एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चन नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक सवाल है। जी सर। आखिरी ही आयत से मुताल्लिक है कि बेशक कि हमें उस डिटेल में नहीं जाना, लेकिन क्या वो ओपन वो थी, मतलब कि बस तुम मारो एक दूसरे को, या अल्लाह ताला ने जैसे पर्सनलाइज करके, क्योंकि उनको तो सब पता था ना कि उन्होंने खुद एडमिट किया ना, लोगों ने खुद एडमिट किया। अच्छा, तो वो इस तरीके से पर्सनलाइज हुआ कि उन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि उन्होंने कहा कि मैंने किया था, दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया था, तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जो आप में से, आप लोगों में से, मूसा अलैहि सलाम ने किसी को कत्ल नहीं किया उस वक्त, ठीक है ना, वो मूसा अलैहि सलाम नहीं कर रहे थे। मूसा अलैहि सलाम से जो एक कत्ल हुआ था, दैट वाज लाइक मिस्टेकनली, याद है ना आपको, जब वो निकले थे और मदीन की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने, उससे पहले जा नहीं रहे थे, उधर मिस्र में ही थे, फाइट हो रही थी तो उसमें उन्होंने मार दिया था एक को, दैट वाज बाय मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर ये हुक्म दिया जा रहा है कि उनको कत्ल करो, और जो लोग, हमें कैसे पता चलेगा, मूसा अलैहि सलाम को भी कोई ये नहीं पता था, तो इसीलिए खुद उन्होंने जब एडमिट किया कि हाँ आई डिड इट, आई रॉन्ग माय। अच्छा, वो ये हुआ था कि उन्होंने जो गिल्टी थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो गिल्टी हैं, और फिर इस तरह। ठीक है, जज़ाक। अगर और क्वेश्चन नहीं है तो मैं नेक्स्ट आयत पे चली जाऊं। एक और क्वेश्चन, जी ये फकातुलु अनफुसकुम, सो अपने आप को मारो या एक दूसरे को मारो? अनफुसकुम, अपनी, मतलब आप जो पूरा ट्राइब है, जूइश लोगों का जो ट्राइब है, बनी इसराइल का जो ट्राइब है, आप अपने लोगों में से अपनों को मारो। मतलब ये नहीं कि बाहर से कोई आके मारेगा। और फिर आगे ये भी है ना कि इसीलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए अब्दुल्लाह बिन मसूद के बहुत इंपॉर्टेंट, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, तो अपने आप को नहीं मारो, अपने आप को नहीं। नो, नोबडी वुड किल देमसेल्व्स, नो, ओके, अपनों में से अपनों को। यही जरा सा क्लैरिफिकेशन के लिए, इसीलिए वो हदीस जरूरी थी
کہ ہم بھی سوچیں کہ اپنے آپ کو کیسے ماریں گے, اپنے آپ کو کیسے. جب آپ نے میننگ کہا تھا تو کہا تھا سو کل یور سیلف among yourselves, ہر ٹرانسلیشن میں یہی تھا. تو پھر میں نے دیکھا میں نے کہا کیا لکھوں, انفسکم, اپنی جانوں کو, لیکن اس میں اپنے آپ کو نہیں ہے. کل آپ اس کو کلیریفائی وہاں پر کر لیں. ناہید اچھا کوشچن ہے, آپ کہ اپنے لوگوں کو, your people. So in the barikum means English is near with. کا مطلب ہے with نا, جیسے ہمارے پاس عندی قلم, I have, ٹھیک ہے نا, I have near your creator. with your کرے نا, with your یا near your creator. اس کو اردو میں یہ آپ کے رب کے پاس, آپ کے بعد, رب تمہارے نزدیک, مطلب اللہ کے نزدیک, اللہ کے قریب. میں نے بولا تھا نزدیک بھی بولا تھا, قریب بھی بولا تھا, پاس بھی بولا تھا. یہ تینوں ورڈز میں نے لکھے تھے یہاں پر تاکہ بھول نہ جاؤں. کبھی کبھی میں لکھ لیتی ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں کہ میں بھول نہ جاؤں, اس وقت کبھی بھول جاتی ہوں. اور سوال ہیں یو وانٹ ٹو ڈو, کیونکہ پھر نیکسٹ پھر ذرا لمبی آیت ہے 55. سوالات پوچھ لیں, چلیں, بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا, یا آپ چاہیں تو میں آگے بڑھ جاؤں. کر لیتے ہیں ایک اور آیت, چلے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. تو وَإِذْ and when, اور جب, قُلْتُم you said, ابھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, تم سب نے کہا, اور جب تم سب نے کہا, you guys, یعنی جب آپ لوگوں نے کہا, اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم سب نے کہا, you said, یا موسیٰ, او موسیٰ, اے موسیٰ, لن نؤمن, never will we believe. یہ فارم 4 کا ہے, نؤمن آپ کو پتہ ہے, آمنا یؤمنو اس سے آتا ہے. never will we believe, ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے. کس چیز پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں لکا, یعنی ان یو یا فار یو, ہم آپ کے لیے یا آپ پر ایمان نہیں لائیں گے ہرگز. حتیٰ, حتیٰ آپ کو پتہ ہے انٹل, یعنی حتیٰ کہ, جب تک کہ, یہاں تک کہ. انٹل انگلش میں سے ایک ہی آپ کہتے ہیں, انٹل اینڈ انلیس کہنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں انٹل اینڈ انلیس, یا انٹل, حتیٰ جبکہ, یہاں تک کہ, نرا, نرا کا لفظ کہ اس کے کیا روٹ لیٹرز ہیں, را حمزہ یا, را حمزہ یا, را نہیں, نرا, را یرا, رؤیتن, رؤیتن, را یعنی ہی سو, یرا ہی سیز, رؤیتن جو ویژن ہوتا ہے, کوئی بھی ڈریم ہے, رؤیا کچھ بھی. وی سی, نرا وی سی, ہم دیکھیں گے, ہم دیکھ لیں, وی سی ہم دیکھ لیں اللہ کو, یعنی ہم آپ پہ اس وقت تک بلیو نہیں کریں گے جب تک نر اللہ, جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں جہرتن. اور جہرتن کا مطلب کیا ہے آپ نے پتہ, ہمیں پتہ ہے نا, جب ہم نماز پڑھتے ہیں, ایک جہری نماز پڑھتے ہیں, تو اس کا مطلب کہ کلیئر, فیس ٹو فیس, اپیرنٹ. تو اس کے روٹ لیٹرز ہیں جیم ہا را, جیم ہا را, اپیرنٹلی, کلیئرلی, فیس ٹو فیس, یعنی ہم ظاہری طور پہ اللہ کو دیکھنا لیں, یعنی اعلانیہ ہمیں اللہ کو دکھائیے, کھلم کھلا, آمنے سامنے, فیس ٹو فیس. اللہ کو ہم جب تک دیکھنے لگے ہم آپ پہ بلیو نہیں کریں گے. اس کی گرامر دیکھ لیتے ہیں. واو العطف پلس ظرف زمان, وَإِذْ قُلْتُمْ فعل ماضی, سیکنڈ پرسن, میسکولن پلورل, فاعل, یا موسیٰ آپ کو پتہ ہے حرف ندا پلس منادا, اس میں علم. لن نؤمنو, اب لن آ گیا نیگیٹو پارٹیکل, ٹھیک ہے نا, حرف نفی جو آتا ہے, فعل مضارع ہے, لن نؤمنو ہرگز نہیں دیکھیں گے, فعل اور منصوب, لن کے ساتھ منصوب آتا ہے, فرسٹ پرسن پلورل, آلسو فاعل, ٹھیک ہے نا. لکا اس یو آپ کو پتہ ہے حرف جر پلس ضمیر متصل, سیکنڈ پرسن سنگولر, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سنگولر ہے, ان کو بول رہے ہیں. حتیٰ حرف جر, نرا, نرا اس فعل مضارع منصوب, فرسٹ پرسن پلورل, فاعل بھی ہے. اللہ, اللہ اسم الجلالہ اور مفعول بہ بھی ہے, نر اللہ یعنی اللہ کو جب تک دیکھ نہ لیں. جہرتن اسم منصوب, اینڈ جہرا آپ دیکھیں تا مربوطہ ہے, فیمینن انڈیفینٹ ناؤن, اینڈ اٹ آلسو مینس حال یعنی اسٹیٹ, جب تک ہم دیکھ نہ لیں اپنی نظروں سے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں. تو جہرتن کا مطلب یہ بھی ہے کہ اٹس اے حال, اٹس اے اسٹیٹ, جس اپنے اس حالت میں دیکھ نہ لیں. فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون. فأخذتهم, أخذ same took, یعنی أخذ يأخذ أخذا, أخذ يأخذ أخذا, اور so فأخذتكم, so took you, so seized you, پس تمہیں پکڑ لیا.
तुम्हें ले लिया, पकड़ लिया, किस चीज ने? अस्साइक़तु, अस्साइक़ा साद आइन काफ, द थंडर बोल्ट, यानी वो जो जोर की कड़ाकी की बिजली, आई थिंक ये पहले हम पढ़ चुके हैं। तो जो द लाउड नॉइज, द एक्सप्लोजन, बिजली की कड़क कह लें, और या हौलनाक आवाज कह लें, बहुत डरावनी आवाज जो आती है, जो जोर से आके हम कहते हैं ना थंडर होता है वो। व अंतुम, अगेन यहाँ पर वाइल यूवर, वह जो है वो वाइल है, यानी आप देख रहे थे, जबकि तुम इस हाल में कि तुम देख रहे थे, जबकि तुम सब तंजुरून ठहरे, व अंतुम इज वाइल यू वर, ठीक है। तंजुरून इज staring, looking, watching, while you were watching, और तंजुरून के रूट लेटर्स हैं नून, ज़ा, रा, आई थिंक ये आप कर चुके हैं पहले भी आया था, जब वो समंदर में डूब रहे थे उसका भी आया था, आप देख रहे थे। सो उर्दू में कहेंगे while, इंग्लिश में कहेंगे while you were, उर्दू में कहेंगे जबकि तुम सब, यानी इस हाल में कि तुम सब देख रहे थे, तुम देख रहे थे, while you were watching, you were looking, you were staring, जबकि आप सब देख रहे थे। तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त फ़अख़ज़तकुम साइक़ा, फाउल अत्फ़ है वहां पर, अख़ज़तकुम फिल माजी थर्ड पर्सन, अख़ज़त लिखा है ना, तो फेमिनिन है। किस लिए फेमिनिन है? क्योंकि ये साइक़ा के बारे में है, साइक़ा के बारे में है, बिजली थंडर के बारे में है, और आपने देखा उसमें साइक़ा जो है वो फेमिनिन है बिकॉज ऑफ इट्स ता मरबूता। और फिर कुम दमीर मुत्तसिल एंड द सेम थिंग, साइक़ा इज इसम मरफू, क्योंकि वो सब्जेक्ट है, उसकी वजह उसने किया, इट इज द डूअर, तो इट इज ऑल्सो द फाइल। अब यहाँ साइक़ा इज फाइल, ठीक है ना, क्योंकि साइक़ा फ़अख़ज़तकुम साइक़ा, साइक़ा ने आपको पकड़ लिया, साइक़ा ने आपको मार दिया, ठीक है ना। तो इट्स फेमिनिन सिंगुलर एंड डेफिनेट नाउन अस्साइक़तु, इट इज ऑल्सो फाइल। व अंतुम बाउल हालिया, दमीर मुत्तसिल, again second person masculine plural, and then tanzurun, tanzurun is fi'l मुदारे, यानी आप देख रहे थे, तो second person आप, tanzurun, yanzurun वो देख रहे थे, tanzurun आप देख रहे थे, masculine plural fa'il, also अंतुम के लिए, अंतुम is मुब्तदा and tanzurun is खबर। चलें इसकी तफसीर भी कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला याद दिला रहे हैं बनु इसराइल को, अगेन व इज याद दिला रहे हैं, एंड रिमेंबर कि व्हेन मूसा अलैहि सलाम, व्हेन दे सेड, उन्होंने मूसा अलैहि सलाम से कहा कि हम कभी भी आपको बिलीव नहीं करेंगे until and unless we see Allah apparently। तो मैंने आपको जिस तरह बताया जहरतन, जहरतन का मतलब है क्लियरली, पब्लिकली, फेस टू फेस, यानी इतने स्टबर्न थे ये जूस कि ये लोग उस वक्त तक अल्लाह के को सबमिट नहीं कर रहे थे, मूसा अलैहि सलाम की बात नहीं मान रहे थे, जब तक वो कहते हैं अल्लाह को हम अपनी आंखों से देखना लें। यानी डायरेक्टली हमारे सामने अल्लाह हमें क्यों नहीं मुखातिब होता है, मतलब ये देखें उनकी हठधर्मी, उनकी जो स्टबर्ननेस है। और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ डिबेटिंग शुरू कर दी, आर्ग्यूइंग शुरू कर दी उनके साथ, कि इतना ज्यादा उनके साथ बहस करने लगे कि हम आप पे नहीं बिलीव करेंगे। हालांकि आपको पता है उन्होंने कितने मिरेकल्स देख लिए थे इससे पहले फिरौन के होते हुए, आपको पता है ना, 30 आयात में से उन्होंने वो अजदहा भी देख लिया था, वो सब हो गया था, जो सांप आए थे वो हुआ, फिर उन्होंने मन्नो सलवा देख लिया, उन्होंने पार्टिंग ऑफ द सी देख लिया, सब कुछ देख लिया। लेकिन फिर भी वो लोग इतने ढीठ थे जूस के, उन्होंने ये कहा कि हम सबमिट नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने देखना लें और वो हमसे बात ना कर लें। सडनली उसके बाद क्या हुआ, वो साइक़ा आया, और वो साइक़ा क्या था, वो थंडर बोल्ट था जिसने उनको इंस्टेंटली मार डाला, इंस्टेंटली मार दिया, व्हाइल दे वर स्टेयरिंग, वो देख रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जो नेक्स्ट आयत है, इट विल चेंज द सीन। अभी इस सीन में आप इतना याद रखें कि उनको मार डाला अल्लाह ताला ने उस थंडर बोल्ट से, उस साइक़ा से, उस बिजली के गिरने से उनको खत्म कर दिया। तो टाइम हो गया, कोई सवाल है पूछ लें, अभी भी है तो फिर इंशाल्लाह ताला आया 55 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट टाइम हम आया 56 से शुरू करेंगे। कोई सवाल, कोई कमेंट? नहीं, प्लीज याद रखिएगा, सबसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नायरा के अब्बा के लिए बहुत दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत के लिए, और नायरा और उसकी फैमिली के लिए, उनकी सब्र जमील के लिए, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। पहले उनके शौहर की डेथ हुई नायरा की, फिर नायरा के भाई की डेथ हुई, अब नायरा के अब्बू की डेथ हुई, तो बहुत बड़ी आजमाइश है, सब उनके लिए बहुत दुआ करें। चलें, कोई सवाल नहीं है तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व इय्याकुम, आप सबको इय्याकुम, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जब आप जज़ाकल्लाह कहते हैं वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला हमें और इसका रिवॉर्ड भी दे और अल्लाह ताला हमसे ये काम लेता रहे इंशाअल्लाह। चलें, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। बाय।